नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। अमृतकाल का पेश किया गया पहला बजट 7% जीडीपी ग्रोथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर। गरीब समर्थक और किसान समर्थक बजट लघु उद्योग इकाइयों के लिए, रियासती किसानों और लघु उद्योगपतियों के लिए। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों ने परीक्षाओं के संचालन के लिए ब्लैक लिस्ट कंपनी को काम पर रखने के लिए संबंधित प्राधिकरण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। और राष्ट्रीय राजमार्ग आज तीसरे दिन भी रहा बंद, यातायात को एक बार फिर किया गया बंद। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारतीय संसद में केंद्रीय बजट 2023-2024 पेश करते हुए कहा कि ये अमृतकाल में पहला बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में किसानों, युवाओं और पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कस्टम ड्यूटी में बदलाव भी देखने को मिलेगा, जहां सिगरेट्स पर कस्टम ड्यूटीज जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ बात करें ऑटोमोबाइल्स, बाईसाइकिल्स, टॉयज, कैमरास, लेंस, लिथियम आयन बैटरीज, इस पर जो है वो कस्टम ड्यूटीज जो है वो कम की जाएगी। The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support
will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. KCCL योजना के तहत किसानों के ऋण के लिए 1 वर्ष की छूट की बहुत आवश्यकता है और लघु उद्योग इकाइयों के लिए रियासतें किसानों और लघु उद्योगपतियों के लिए राहत। अल्ताफ ठाकुर भाजपा जे के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महान कदम के लिए सभी की सराहना की पात्र है। उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव पर भी बात की और कहा कि राज्य की जमीन हड़पने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किसानों का जो केसीसी लोन है उसको 1 साल तक छूट दी गई है और ऐसे बहुत से इसमें जो अनाउंसमेंट्स की गई है। मेरा मानना है कि आज का जो बजट है मिसाली बजट है और इसमें मुल्क की तरक्की और आम लोगों का ख्याल रखा गया, गरीबों का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया, बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखा गया है, किसानों का ख्याल रखा गया है। सब जितने भी सेक्टर हैं उनका ख्याल रखा गया। ये पीपल फ्रेंडली बजट है और इसको अगर हम कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल है देश में उनका ख्याल रखा गया। बहुत अच्छा बजट है, पीपल फ्रेंडली बजट है, लोगों का बजट है, लोगों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर एक इशू जो है काफी ज्यादा सरगर्म है और जिसमें यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो की जा रही है। आम लोगों को भी खौफ है कि उनके मकानात जो है वो उनसे छीने जाएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एलजी साहब ने अनाउंसमेंट भी की और कल हमारे बहुत सीनियर लीडर भी उनसे मिला और मुझे लगता है कुछ दिन में एक फॉर्मली ऑर्डर भी इसका आ जाएगा कि जिनके पास 5 मरले 10 मरले या 15 मरले जमीन है, जिन्होंने उनमें रेजिडेंशियल हाउसेज बनाए हैं, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और लेकिन जहां तक दलालों का ताल्लुक है, जहां तक जमीन ग्रैबर्स का ताल्लुक है, जो बड़े बड़े फेसेस है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स है या बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं। कल आपने देखा कि अली मोहम्मद सागर ने भी जमीन हथियाई थी और कल आपने देखा कि डॉक्टर फारूक साहब के जो जेडोज होटल है उसमें जो उन्होंने 40 कनाल जमीन जो हथियाई थी। ऐसे जो लोग हैं या चाहे हमारे जो अपने कविंदर गुप्ता साहब है उनकी भी जमीन निकाली बिना जात, बिना रंग, बिना नस्ल, बिना मजहब, बिना पॉलिटिकल डिफरेंस। जिसने भी सरकारी जमीन खाई है वो सरकारी जमीन उसको निकाल दी जाएगी। जो बाबा का बुलडोजर कश्मीर में शुरू हो गए, बाबा का बुलडोजर हर जगह पहुंचेगा। और जिन इन्फ्लुएंस्ड आदमी ने सरकारी जमीन 90 की दहाइयों से आज तक मिलिटेंसी की आड़ में, दहशतगर्दी की आड़ में जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया, वो जमीन उनसे छुड़ाएगा। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों ने परीक्षाओं के संचालन के लिए ब्लैकलिस्ट कंपनी को काम पर रखने के लिए संबंधित प्राधिकरण के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जेकेएसएसबी उम्मीदवारों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और अपना रोष व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान जेकेएसएसबी उम्मीदवारों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। एलजी साहब तक पहुंचे, एलजी साहब को सुनाई नहीं दे रहा है या वो जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं, हमें नहीं पता। इधर स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। 4 सालों से लगातार बच्चे सड़कों पे हैं, ना ही कोई फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हो रही है। इधर जब भी देखो तो एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को लाते हैं पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। पहले एक मैरी ट्रैक कंपनी को लाया, वो भी ब्लैकलिस्ट थी। पेपर एडवर्टाइजमेंट बाद में आती है, बिक पहले ही जाती है। इनको शर्म तो है नहीं है, अब बच्चों ने तो लड़ना ही है। दूसरी बार भी इनको बोला कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को नहीं लाना है। हमारे भाइयों ने इनके ऑफिस में जाके एड्रेस किया था इनको कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को नहीं लाओ, फिर भी ये कोर्ट में जाके ब्लैकलिस्ट कंपनी को डिफेंड करते हैं। बच्चे करे तो क्या करें, ये जानबूझ के यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इन्होंने नौकरियां तो देनी नहीं है। एलजी साहब का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ ये बेटी को पढ़ा तो रहे हैं, मुझे तो लगता है अपनी ही बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों को बचा रहे हैं। हमें तो उन्होंने सड़कों पे ला के रख दिया, शर्म तो इनको है नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल है, जितने भी मिनिस्टर है कोई आवाज़ तो उठा नहीं रहा है। सारी अपोजिशन पता नहीं कहाँ है, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। और जो एक्स चेयरमैन थे वो बोलते थे मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता। कौन सा मेरिट, सब तो बिक गया इधर, मेरिट तो कोई इधर नाम है नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, अगर बेचना पैसों में पेपर, तो उसमें नाम भी लिख दिया करो 25 लाख। बच्चे तैयारी ना करें, मेहनत ना करें, इधर पागल नहीं है सब जो तैयारियां कर रहे हैं। अब क्या डिमांड करते हो? हम यही डिमांड करते हैं कि बार बार ये ब्लैकलिस्ट कंपनी ना लाएं। जो कोर्ट में जाके एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को डिफेंड करते हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके एथिक्स कहाँ है? हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हो। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए आज तीसरे दिन भी बंद रहा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते जहां जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिन बंद रहा, वहीं बीते कल शाम
को कुछ घंटे के लिए जम्मू कश्मीर यातायात के लिए बहाल किया गया था। वहीं आज सुबह रामबन क्षेत्र में पस्सी गिरने की वजह से यातायात को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। साथ ही संबंधित विभाग की माने तो लगभग 7 घंटे अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने में लगेंगे। वहीं उधमपुर के जखैनी चौक में घाटी की ओर जाने वाले सैकड़ों छोटे छोटे वाहन जो है वो रोक दिए गए हैं। जम्मू के जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया क्षेत्रों के मोहन सिंह सलाथिया को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं कवि पद्मश्री सम्मान के लिए उन्होंने आभार प्रकट किया है। सबसे बड़ी बात है कि डोगरी के किसी आदमी को, डोगरी में काम करने वाले किसी आदमी को, डोगरी लिटरेचर में डोगरी भाषा के लिए काम करने वाले किसी आदमी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाना पूरी डोगरा कौम को सम्मानित करना है। मैं समझता हूँ कि उनमें मेरा ही नहीं उन लोगों की गुड विशेस भी शामिल हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे उस काम की सराहना करने वाले लोग, मेरे चाहने वाले लोग। ये सारा का सारा श्रेय उनको जाता है, उनका अवार्ड है जी। बिल्कुल मेरी मार्फत मैं जरिया बना हूँ, तो बहुत बड़ा सम्मान है। देश का इतना बड़ा सम्मान जिसे मिले वो अपने आप में गर्व तो महसूस करेगा ही। मैं भी इस बात का फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया। मैं भारत सरकार का उसमें शामिल जितने भी इस प्रक्रिया में शामिल लोग थे उनका और अपने चाहने वालों का सबका शुक्रिया अदा कर। हो सकता है कई बार मेरे उन लोगों को, परिवार के लोगों को, जब कि ये क्या काम, ये हर वक्त यही लिखना है, घर परिवार की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आज शायद उनको लग रहा है कि नहीं ये ठीक ही कर रहा था जो कर रहा था। आज वो अपने आप में फ़ख्र महसूस करते मुझे महसूस होते हैं कि हाँ कोई बात तो है। मतलब मुझे घर में भी रिकग्निशन मिल गई। सरकार ने रिकग्नाइज़ किया, मेरे चाहने वालों ने रिकग्नाइज़ किया और घर वालों ने भी रिकग्नाइज़ कर दिया। उधमपुर के अमरदीप हाई स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर द्वारा यूथ अवेयरनेस कैंपेन का आज आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को नशे से होने वाली बीमारियों और साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में उनको जागरूक किया गया। अपने आप को लिप्स को जो है वो ऐसे स्मैचिंग करते हैं ना, लिप्स को स्मैचिंग भी, या तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को रब करते हैं, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आप उसके लिए भी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपके कमेंट्स करेगा, जैसे बहुत सारे गाने आज तक निकले, शीला की जवानी हुई, मुन्नी बदनाम हुई, चलते हुए बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स में बोल देते हैं किसी लड़की को, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। कोई भी आपके साथ टेलीफोनिकली आपको कोई SMS कोई भेज रहा है, कोई फ़ोटोज़ भेज रहा है, आपको जो है तुरंत जो है पुलिस स्टेशन आना है और पुलिस स्टेशन में जो है जो भी इंचार्ज है आपको उनसे बात करनी है इसके रिगार्डिंग, ताकि ये जो वायलेंस है इस वायलेंस को हम वहीं पे ख़त्म करें और वायलेंस जो है ज़्यादा ना बढ़ पाए। जब वायलेंस बढ़ पाएगा, अगले बंदे को ये लगता है कि ये बंदी जो है वीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं जानता है। और हमेशा लोग अगर कहेंगे कि वुमेन वीक है, बट मैं वुमेन को जो है एज अ स्ट्रेंथ मानती हूँ, ठीक है ना। और आपको मानना चाहिए, आपको अपने ऊपर जो एक फेथ होना चाहिए, हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो तब आप अचीव कर सकते हो जब आप एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ अपने राइट्स को जानोगे, अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारे SSP IAS करके, IPS करके, IRS करके। मैं कहती हूँ अगर एक औरत ऑटो ड्राइवर भी बनेगी, जब उसको अपने राइट्स पता होगा, उसको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। बेमीना खुमैनी चौक के स्थानीय लोगों द्वारा अपने क्षेत्र में जल जमाव होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा इस संबंध में अधिकारियों से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील जो है वो की गई है। हड्डी भी खराब हो गई थी इसी की वजह से, तो मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एक्सरे करना पड़ा। वजह है कि यहाँ पे झटका लगता है बहुत सारा, तो बहुत परेशानी हो रही है यहाँ कम से कम 2 साल से। और यहाँ से दूसरा रोड भी आ रहा है और वो भी बर्बाद है। हम सोच रहे हैं कि वहाँ से चले, वो भी बर्बाद है, और जाए वहाँ से दूसरे साइड से, वो भी खराब है। कोई साइड यहाँ ठीक नहीं है। उनके बंदे तो हर यही इसी रास्ते से गुजरता है, वो भी खुद गुजरते होंगे ना यहाँ से, उनको तो पता नहीं है।
लेकिन करने वाला कोई नहीं है, केयर कोई नहीं करता है यहाँ। इसमें देखो एक रोड यहाँ से भी है, कम से कम अगर ये इसको ठीक करना था, इसमें वैसे पाइपें बिछानी थी, तो वो साइड तो कम से कम कंप्लीट रखना था ताकि गाड़ियाँ चल सके। न वो ठीक है न ये ठीक है, वो भी बर्बाद है और ये भी बर्बाद है, सारा इलाका ही बर्बाद है ये। अब जो जिला इंतजाम है उनसे क्या आपकी अपील रहेगी? वो ये है कि सड़क ठीक हो जाए। द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ। नमस्कार।